two chapters of organic chemistry, right? Haloalkane, halorine, and alcohol phenol ethers. You have done these two chapters, yes or no? Yes, have you done or not? Okay. Children, answer is expected. Yeah. Children, response, Yes. please. Okay. Yes. Student, are you comfortable with the English, or I can speak mixed language, Hindi English? हिंदी इंग्लिश में बात करें, मिक्स करके बात करें? Will that be okay? Yes, sir, it's fine. Okay, I'll be using mixed language, right? So alcohol phenol ether and haloalkane halorine आप लोगों ने कर लिया है, right? Today I'll be starting with the new chapter, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. Very simple chapter. It is all based upon what you have already done. Haloalkane and halorine. कुछ नया नहीं है. Little bit different, little bit change, and you'll be able to understand very, very easily. Now I will be sharing my screen with you. Okay, before I start the class, let me introduce about myself. I am Dr. Umesh, PhD in chemistry, right? And for the last 20 years, I have been preparing students for medical and engineering entrance examination. So how many are from the medical field? How many are from the medical NEET? आप में से कौन मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा है? और जेई के लिए? ईशा? Okay. Okay, right. I can see your raised hands. Okay, perfect. So I'll be discussing basic, and then I'll be giving you question practice, whatever we will be discussing in the today's class, right? So I'm starting with the aldehyde, ketones, and carboxylic acid. Can all of you see my blackboard? Can all of you see my blackboard? Yes or no? Right. Yes. So when I say aldehyde, the functional group is CHO. This is the aldehyde group. We can show like this. This is a aldehyde. Student, please keep on answering whatever I will be asking you, right? Wrong or right doesn't matter. If you're wrong, I will correct it. If you're right, that's good. एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड ग्रुप में ये वाला जो कार्बन एटम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन या साक्षी पटेल? साक्षी पाटिल? Anyone else? Sir, SP. SP. It is making double bond with the oxygen, right? In that case, that will be sp2 hybridized. Whenever carbon make double bond with oxygen or with a carbon, it is sp2 hybridized, right? Okay. And this functional group is called as a ketone. When both the side we have R group, it is a ketone group. In this case also, this carbon is sp2 hybridized. Whenever we have an sp2 hybridized, what is the geometry of the molecule? What is the geometry of the molecule when we have a carbon with the sp2 hybridized? यस चैतन्य, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो ज्योमेट्री क्या होगा? नो आइडिया? यस अंजलि, ऐशा, एनीवन? नहीं आ तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आ रहा है, नहीं आता है, इट्स ओके। सर लीनियर होगा शायद। शायद लीनियर होगा। चलिए, अब आपको एक बात याद करना है।
Whenever it is sp hybridization, the geometry is linear. sp2, it is trigonal planar. Trigonal planar. And sp3, the geometry is tetrahedral. Right? sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये सब कुछ आपने ग्रेड 11 में किया है ना, केमिकल बॉन्डिंग में. नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट यू विल लर्न विद मी, बट ये टॉपिक किया है आपने ग्रेड 11 में, राइट? केमिकल बॉन्डिंग में sp3d2 is octahedral. यू कैन नोट इट डाउन क्विकली, क्योंकि बिकॉज ये बहुत बेसिक सी बात है और ये हमें ऑर्गेनिक को समझने में बहुत यूजफुल रहेगा. स्क्वायर प्लेनर. Quickly note down, whenever we have an sp2 hybridization, the geometry is trigonal planar. Quickly note down and let me know when you are done. It should not take more than 1 minute. Are you done? Disha? Yeah. Siddhi? Sakshi Patil? Done? Yes, sir. Right. Okay. So this carbon atom is sp2 hybridized. अच्छा स्टूडेंट, अब बहुत क्लियर बात है. Whatever you are not aware of, whatever the concept you don't know, just ask me frankly. I'll make it clear. ये ग्रेड 11 का भी हो सकता है और 12th का भी हो सकता है. नो प्रॉब्लम, आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग. ओके, अब मैंने आपसे कहा कि जो कार्बन एटम है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. The geometry will be trigonal planar. The shape of the molecule is trigonal planar. Okay. Now, अब आप मुझे बताएंगे, आपको नोमेनक्लेचर आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना आता है? हाँ सर. आता है. ओके. इन केस ऑफ एल्डिहाइड, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? AL. al. Good. Okay then. I want everyone to participate now. ये मॉलिक्यूल है, इसका आपने मुझे नेम बताना है. कैसे नेम करते हैं, क्या रूल्स मालूम है सभी को? रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. आते हैं ना नोमेनक्लेचर के रूल्स? सिद्धि, साक्षी, चलिए स्टार्ट करिए. नेम नेम बताएंगे, कौन बता रहा है? ethanol, Good. 1, 2. Word root is eth. Primary suffix is n and secondary suffix is al. Everybody clear about this? Okay. Now name this compound. Name this compound. Sir, 2-methyl butanol. Very good. 1, 2, 3, 4. 2-methyl butanol. Everybody clear about this? Okay. स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में यस नो लिख दीजिए.
यस नो क्वेश्चन कुछ भी चैट बॉक्स में. ओके वैसे माइक ऑन करिए और बात करिए, दैट विल बी द बेस्ट मेथड. स्टिल इफ यू कांट डू chat box. Okay, now I have this molecule. Name it. Quickly. Excuse me, sir. Sorry Yes. to disturb you. Yes, please. Hello, sir. Yes, please. Very sorry to disturb you. This is Disha Patil. Actually, I would encourage. I would request you to encourage the children to have a direct one-to-one talk with you, sir, rather than using the chat box. Pardon, ma'am, I'm not getting you. I want the children to actually directly have a one-to-one word with you rather than using the chat box, sir. That will be the best method. I'm asking Yes, sir. all of Yes, you encourage them and tell them they have to switch on the camera. you. Right. So Kindly, sir. sure. Thank So- you, sir. Thank you. Yes, everyone, students, have you listened? Turn on the camera and turn on the mic. Let us have a live class. Live class means just like I am at your place in your classroom. मैंने अपना कैमरा ऑन किया है, अपनी आवाज है, राइट? सो आई एम इन योर रूम राइट नाउ. टर्न ऑन द कैमरा एंड माइक. चलिए मेरे को आंसर बताएंगे इसका अभी. साक्षी, एवरीवन, मैं किसी एक से नहीं पूछ रहा हूँ, जिसको आता है पहले पहले वो बता दे, जिसको नहीं आ रहा है वो डाउट भी पूछेगा मुझसे. Prop 2 in L. रिपीट. Prop 2 in L. प्रॉप. ठीक है, प्रॉप. वाई प्रॉप? 3 carbons. 3 कार्बन. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया चैतन्य? Aldehyde group से. ओके 1 2 3. प्रॉप 2 इन 1 अल. इस नेम को लिखते हुए आपने एक बात को ध्यान रखना है. व्हेनेवर वी राइट इन, आपको यहाँ ई लिखना चाहिए था. यस और नो? लेकिन हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है. रीजन बीइंग, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में रूल है कि सफिक्स में इंग्लिश वोवेल्स ए ई आई ओ यू एंड वाई दैट कैन नॉट कम टुगेदर. whichever comes first, that is to be omitted. डिलीट कर देना उसको. So I have omitted the E from here. ये रूल आपको आता था या नहीं आता था चैतन्य? हाँ सर, मालूम. आता था. गुड. ये E यहाँ से डिलीट करना है. E नहीं लिखना है. E तब लिखना है अगर अगला लेटर वोवल नहीं होता है तो. राइट? एवरीवन गेटिंग दिस? सिद्धि, ऐशा? Yes, sir. Okay, good. What is the name of this molecule now? इसको आपने एक्सपेंड कर दो. ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं. It is the aldehyde group here. Then again we have an aldehyde group here. Can you do the numbering? Name it. Yes, Sanika Malve. तन्मय, एवरीवन एक्टिव हो जाओ. म्यूट मत बैठो मेरी तरह. Ethane di It in on number 1 and number 2 we have a al, so it is a dial. It in 1 2 dial. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर e को omit नहीं किया है. रीजन अगला लेटर वोवल नहीं है. I hope it's everyone clear about. क्लियर है सभी को? ऐशा? राइट, परफेक्ट. नोट कर लिया सबने? नोट कर रहे हैं आप सभी लोग? Yes sir. ओके, ठीक है. नोट करो. फिर आपका एक सडन एक टेस्ट लेना है मैंने अभी. सरप्राइज होगा कुछ अभी. ओके फाइन. नाउ
जब आपके पास में ये ग्रुप आ जाए, दिस ग्रुप इज कॉल्ड द कीटोन, और कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? हु विल टेल? ओन, ON. ONE। इसे वन नहीं पढ़ना है, इसे ओन प्रोनाउंस करना है। सो दिस इज द कंपाउंड। कैन यू नेम दिस कंपाउंड? आपने नंबरिंग ऐसे करना है, द कार्बन विच कंटेन दिस फंक्शनल ग्रुप गेट द लीस्ट काउंट। इस समय आप नंबरिंग कहीं से भी करो, लेफ्ट से या राइट से, दिस विल गेट नंबर 2 ओनली। सो इट इज अ prop. Carbon single bond is there, so it is a N, and we have a 2 on. It's a word root, primary suffix and secondary suffix. Am I clear? ओके अब मैं आपसे एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आप लोगों ने प्रैक्टिकली ये कंपाउंड देखा है? प्रैक्टिकली कहीं पर आपने कंपाउंड देखा है? नहीं सर. नहीं देखा है? किसी में नहीं देखा? चलो इसका कॉमन नेम मालूम है आपको? कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड? Acetone. एसीटोन। परफेक्ट। अब आपने एसीटोन देखा है प्रैक्टिकली? किसी बोतल में रखा हुआ कहीं पर देखा है? क्विकली यस या नो? हाँ सर, कहाँ देखा है? वो नेल पॉलिश रिमूवर में। वेरी गुड, परफेक्ट। नेल पॉलिश रिमूवर। तन्मय, अगर नेल पॉलिश रिमूवर का जो लिक्विड है एसीटोन है, उसको हाथ में ऐसे डाल दें, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? वो वेपराइज हो जाता है और ठंडा फील होता है। ओके, ठंडा क्यों फील होता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ मेरे पता सर। नहीं पता, Dehydration. रिपीट। Dehydration. डिहाइड्रेशन। आप वाटर रिमूव कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल होना, राइट? क्या वहां से वाटर रिमूव हो रहा है या सर एसीटोन ही इवेपोरेट हो रहा है? वो पार्ट ड्राई हो रहा है. वो पार्ट ड्राई हो रहा है, तो एसीटोन वहां से जा रहा है ना, एसीटोन के वेपर बन रहे हैं, तो वहां पर डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, वहां पर इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन ऑफ एसीटोन हो रहा है। एंड नाउ वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, यस और नो? Yes. क्यों कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग क्यों कॉज करता है? आपके हाथ में कूलिंग फील होता है। तन्मय, आपने मुझे बताया कि आपने एसीटोन को हाथ में डाला और तो इवेपोरेट भी करता है और वो कूलिंग सेंसेशन भी देता है। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हाई इट कॉजेज द कूलिंग? चलो मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्विकली आंसर करते जाना। इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, यस और नो? Yes sir. यस। अब आप समझिए, ये आपका सरफेस है, ये आपका हाथ है जिसमें कि एसीटोन रखा हुआ है, ये एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको एनर्जी चाहिए तभी इवेपोरेट करेगा। इसको एनर्जी कहां से मिलेगी? इसको इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? आपकी स्किन से एब्जॉर्ब करेगा। आपकी स्किन से एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये पार्टिकल यहां से इवेपोरेट हो गया, ये पार्टिकल यहां से वेपराइज हो गया। क्योंकि आपकी स्किन से हीट एब्जॉर्ब किया है, तो आपके स्किन का हीट कंटेंट कम हो जाएगा, एंड दैट कॉजेज द कूलिंग। टेम्परेचर T1 से T2 पर चला जाएगा, सच दैट T1 ग्रेटर देन T2, राइट? ओके, तो इसका जो इवेपोरेशन टेम्परेचर है बहुत कम है। वाई सो? वाटर के कंपैरेटिवली इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। वाई सो? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाए या इवेपोरेशन टेम्परेचर कहा जाए? वाई सो? boiling point of this acetone is less than that of the boiling point of water. Can you tell me the answer for this? ग्रेड 11 का क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट? Between two molecules of water there is a intermolecular hydrogen bonding. And what about the acetone here? इंटरामोलिकुलर. I'm not getting you.
आई एम नॉट गेटिंग यू, रिपीट। आपने मुझे वन वर्ड आंसर नहीं देना है अभी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी आंसर दो मेरे को, एक्सप्लेनेशन ठीक ठाक दो। यहां पर एसीटोन के दो मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है? एनी आइडिया? कौन बताएगा? चैतन्य आप बताइए। सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है यहाँ पर? इंट्रामोलिकुलर भी कहाँ पर है? एच मतलब वो पड़ जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये नेसेसरी कंडीशन है। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डेड विद अ कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद अ कार्बन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता है। इंटर या इंट्रा तो बात की बात हुई, राइट? गेटिंग मी? तो +1 में जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका हम यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक को समझने के लिए। +1 का हर टॉपिक ऑन टिप्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो मेरे साथ साथ अभी करेंगे। याद कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन, ये वाटर में सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आती है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो ये इंटरेक्शन डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। एम आई क्लियर? यस। एंड दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, सो वी कॉल इट्स ए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एसीटोन में एप्लीकेबल है? अरे देख के बताओ ना आप। नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। चलो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो दो मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करती है? देखो आपके पास बोतल में लिक्विड लिक्विड एसीटोन है, इट मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई तो इंटरेक्शन है जो उसको लिक्विड बना कर रखा है, मॉलिक्यूल बॉन्डेड है, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों को, दो मॉलिक्यूल को होल्ड कर रहा है? ये नहीं दिख रहा है अभी आपको ना? देखिए, आउट ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन मुझे बताएंगे विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। इससे आएगा यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? इसमें पोलैरिटी है या नहीं है? बड़ी से और देख के बताओ ना। पोलर है, यहाँ पर ये पोलर है, राइट? ओके, तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड जो ये इंटरेक्शन करता है, इस इंटरेक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपने मुझे बताना है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में से स्ट्रॉन्गर फोर्स किसका होता है? कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, यस और नो? या, सो व्हाट आई डू, समझिए अब आप मैं अपने ही पिक्चर को पिन कर रहा हूँ, आई थिंक बड़ा होकर दिखाई देगा। दिख रहा है मेरा मेरा पिक्चर, मेरा वीडियो दिख रहा है? यस और नो? हेलो?
Am I visible here? Yes, sir. Okay. मेरे एक हाथ में वाटर है और एक हाथ में एसीटोन है. किस केस में इवेपोरेशन जल्दी होगा? जिसमें वाटर है या एसीटोन है? Acetone. एसीटोन है. तो एसीटोन में कौन सी इंटरेक्शन ऑपरेट कर रही है? ओके. और वाटर में कौन सी इंटरेक्शन हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है? क्लियरली बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर. कौन सा स्ट्रॉन्गर फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल? हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके. जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है उसके वेपर बनाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है. इट रिक्वायर मोर एनर्जी एंड दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ एसीटोन. राइट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके. सो मैं बेसिकली इस एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर को आपको डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ में रिलेट कर रहा हूं. यू विल अंडरस्टैंड बेटर. राइट? ओके. आज आपके पास में एक टेक्निकल इश्यू हो सकता है. व्हाट आई कैन एज्यूम कि आप अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं. कैमरा आपके लैपटॉप में है नहीं, ये हो नहीं सकता. राइट? कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ. नेक्स्ट टाइम कल की क्लास में कैमरा ऑन, ऑडियो ऑन, कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्शन करना है मेरे साथ में. आप एक लाइव क्लासरूम बैठे हैं, जैसे फिजिकली आप क्लासरूम में आते हैं वैसा. मेरी ऑनलाइन क्लास फिजिकल क्लासरूम से बेटर होती है. बस सिंपली इतना है कि मैं आपको फिजिकली शाबाशी देने के लिए आपके कंधे पर टैप नहीं कर सकता हूँ. बस अंतर इतना सिर्फ होगा. क्लियर है? आपकी कॉपी में आके करेक्शन नहीं कर सकता हूँ. बस अंतर इतना है. अदरवाइज मेरी क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम फिजिकल क्लासरूम से बहुत अच्छी होती है. राइट? ओनली द इंटरेक्शन शुड बी टू वे. अभी ऑन कर सकते तो अभी ऑन कर लीजिए. देखिए, स्टार्ट. 1 2 3 स्टार्ट. आई एम वेटिंग फॉर यू. शर्माते हैं आप लोग काफी हैं. चलिए अगला चलते हैं. नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं. मैं नॉमेनक्लेचर करा रहा था आपको और मैंने ये मॉलिक्यूल बताया था आपको, एसीटोन. Now my question is, now what is the name of this molecule? Start. Who will tell? Tanmay. Viewed 3 in 2 only. Good. 1 2 3 4. But 3 in 2 on. Everybody agree with this? Everybody agree with this? Yes or no? Yes. Okay. What is the name of this molecule now? ग्रेड 11 का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको. एल्डिहाइड कीटोन का पहला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, और +1 में नॉमेनक्लेचर बहुत डिटेल में किया है आपने. क्विकली. Cyclopentanone. Cyclopentane on. Okay. गुड. चलिए इसका नेम बताएंगे. One methyl hexane. 2 methyl hexane. 2-methyl. Next what? Cyclohexanone. Good. Cyclohexane. Good. Now
What is the name of this molecule? Benzene. Benzene. And now what is the name of this molecule? Phenol. Pardon? Phenol. नो, आईपीसी नेम बताना है आपने हमें, फिर कॉमन नेम बाद में बात करते हैं. Sir, 1-methyl benzone. 1 2. आपको रूल ये बताया गया है, अगर बेंजीन के साथ में जो एलिफेटिक चेन जॉइंट है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, then this aliphatic chain is taken as a principal chain and the benzene comes into the prefix and that is called as a phenyl. नंबरिंग मैंने यहां से किया है, ये रूल समझ में आ गया आपको. अगर बेंजीन से बाहर जो एलिफेटिक चेन जॉइंट है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, then that chain is the principal chain, main chain. और जो बेंजीन होगा, this will come into the prefix and in the prefix the benzene is called as a phenyl. So this is a 1-phenyl 2-carbon chain, so it is a eth, single bond carbon carbon, so it is a N, ketonic group on 1-phenyl ethanol. 1-phenyl ethanol. इस nomenclature में किसी को डाउट है तो पूछेंगे अभी. Ask me doubts now. Yes, Sakshi. Anjali. No doubt, sir. No doubt. This is also called as a methyl phenyl ketone. Methyl phenyl ketone. This is a common name and it is also called as a acetophenone. ये दोनों कॉमन नेम है. दिस इज द IUPAC नेम. I hope it's very clear. Yes. Okay. Now, next topic now. I'm talking about the structure of carbonyl compounds. This group is called as a carbonyl. Carbonyl compounds. Carbonyl group. अब मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मैंने अभी 15 मिनट्स पहले आपसे डिस्कस किया है. Siddhi, what is the hybridization of this carbon atom? sp2. SP Isha, sp2 होने पर ज्योमेट्री क्या होती है? Trigonal planar. Okay. So this carbon atom is sp2 hybridized. Can I say like this? 1, 2, and 3. And one orbital remain unhybridized and perpendicular to it. This is the sp2 carbon atom. This is the sp2, sp2, sp2. Oxygen has 3 orbital 2px, 2py, and 2pz. If you write electronic configuration of oxygen, atomic number is 8, right? It is 1s2,
2s2 2p 4. This 2p orbital 2p सबशेल, यहाँ पर 2p सबशेल है, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं. One is paired जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. 2 are unpaired. This is the unpaired electron of oxygen and this is the paired electrons. Paired electron बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं एंड कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड हैं. 1 2 3 and 4. This is making head-to-head overlapping and form a sigma bond. And this 2p orbital of the oxygen and 2p unhybridized orbital of the carbon makes sideways overlapping and forms a pi bond. ये बात आपको आती है, +1 में पढ़ करके आ रहे हो केमिकल बॉन्डिंग में. यस और नो? ये टॉपिक आता है राइट. किसी को नहीं आता तो बताओ अभी, जिसको नहीं आता है. सबको आता है? चले आगे फिर. ओके, अब आपने मुझे इतना बताना है, ऐशा आपने बताना है आउट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड विच इज वीकर बॉन्ड. Pi bond. पाई बॉन्ड. ओके, ऐसा क्यों होता है कि पाई बॉन्ड वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली? What's the reason for this? Sideways lateral overlap की वजह से. Your voice is too blurred. Can't hear. और क्या बताएगा? तन्मय, पाई बॉन्ड वीकर क्यों है? पाई बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैप नहीं होता इसलिए. तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग क्यों बन जाता है सिग्मा बॉन्ड? और पाई बॉन्ड में ऐसा क्या खास बात होती है कि ओके, समझेंगे अब यहाँ पर. जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है ये, तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, और जब पाई बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज्यादा नहीं होता है. अगर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम है तो वीकर बॉन्ड बनेगा. एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. जस्ट वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. सी माय हैंड्स नाउ. सी, ये हैंडशेक ऐसा हो रहा है जहां पर पूरा हैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है. अगर दो लोग ऐसे हैंडशेक करेंगे, पकड़ लेंगे दूसरे को, तो इनको छोड़ना मुश्किल होगा. यस और नो? Yes. राइट. और अगर दो लोग ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक ना, इतना सही ओवरलैप करके बॉन्डिंग कर रहे हैं, इनको छुड़वाना इजी होगा. यस और नो? तो जहां पर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा वो बॉन्ड वीक होगा, जहां पर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा. तो सिग्मा बॉन्ड में एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा. ओके, इस बॉन्ड के स्ट्रॉन्गर या वीक होने से हमें एक बात इंडिकेट हो रही है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, उसमें पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा. यस और नो? Esha, getting this? So when we're going to study about the chemical reactions, the pi bond will be broken, not the sigma bond. Okay. So this was the structure, and now I'm going to discuss about the preparation of aldehyde and ketones. Write down preparation of aldehyde and ketones. Preparation of. Okay. Give me a minute. Give me just a minute. मैंने अपना शेयरिंग बंद किया है आपके लिए, और I'm just opening one file.
जस्ट ओपनिंग अ फाइल, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जब तक आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर आपको कोई बात अभी तक समझ में ना आई हो तो प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क। आई एम ओपनिंग जस्ट अ फाइल to discuss something important with you. Nothing? कुछ नहीं पूछना है आप लोगों ने? चलो, आप लोगों ने नहीं पूछना है तो मुझे ही पूछना है आपसे, राइट? Can you see my screen? All of you, can you see my screen? Now this is a multiple choice question practice will be now for your competition examination, जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया आपके साथ में। क्विक क्लिक। Just read it and give the answer. Very simple question. Anjali? Carbonyl group. Very good. They all have, whether it is an aldehyde group or aldehyde or ketone, both of these have this group. This group is called as a carbonyl group. Good. Okay, perfect. Find a group of the compound which have a carbonyl group like aldehyde and ketones. ऐशा, आप चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हो? जस्ट टर्न योर माइक। आप एक लाइव क्लासरूम बैठे हैं ना, रिकॉर्डेड क्लासरूम नहीं चल रहा है ये। इट्स अ टू वे इंटरेक्शन। ओके नाउ। Who'll give the answer? चैतन्य, आप बताएंगे? Sir, acid anhydride. Repeat please. C option, acid anhydride. Acid anhydride. Acid anhydride का फॉर्मूला ये होता है? यस। एल्काइल हैलाइड ये है, अल्कोहल ROH है, और फिनोल ये है, राइट? डू यू नो ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स? यस और नो? राइट। सो कार्बोनिल ग्रुप इनमें से किस में है? दैट वाज द क्वेश्चन लाइक दिस। सो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी गॉट दिस? यस और नो? Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। आई वांट एवरीबॉडी शुड गिव द आंसर नाउ। sp2 sp2 got it now? okay okay ये तो था अभी तक जो मैंने डिस्कस किया नोमेनक्लेचर। मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर प्रेपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, अब आप मेरे को बताएंगे आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिएक्शन याद करने में प्रॉब्लम आती है? अभी आपने अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा होगा, हेलोकेन पढ़ा होगा, +1 किया था, उसमें हाइड्रोकार्बन किया था। ओके और रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, राइट? एक दिन याद करते हैं, अगले दिन भूल जाता है। ऐसा होता है ना सबके साथ में? सबके होता है? तो तन्मय ऐशा के साथ तो होता है। अंजलि आपके साथ ऐसा होता है?
हाँ सर। ओके ठीक है, चलो आज मैं इसका एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको मैं। सॉल्यूशन ये है, अब आपने मेरे से बात करनी है, जो जो मैं पूछूंगा बात करनी है आपने। आपने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं? SN1, SN2, E1, E2 ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ सर। पढ़ी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उन मैकेनिज्म्स को अप्लाई करना है। नंबर वन, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, हमारे वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड मेथड ये रहेगा, आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं? करते हैं ना? तो ऑर्गेनिक को कैसे करते हो आप? ऑर्गेनिक कैसे पढ़ते हो आप कि कल पेपर है, आज कुछ याद करना, तो कैसे तैयारी करते हो आप लोग? क्विकली क्विकली जल्दी आंसर दो, ताकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊं मैं आपको। मेरा फोकस सब्जेक्ट पर है, लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट द रिजल्ट आल्सो, कि मेरे पढ़ाने के बाद में आपको वो चीजें याद भी रहें। मैं वो भी कंफर्म करना चाह रहा हूँ अभी, श्योर होना चाहिए। कैसे तैयारी करते हो? कौन बताएगा? चैतन्य आप बताओ, आप कैसे तैयारी करते हो? सर क्लास के नोट्स और एक बुक है MS चौहान, उसमें से पढ़ते हैं। उसको रीड करते हो या लिख करके प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो? सर रीड। ओके, एक बात आप याद रख लीजिए, रीडिंग से आपको ओनली 20% याद रहेगा अगले दिन तक, 80% इवेपोरेट हो जाएगा। रीडिंग प्लस राइटिंग, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे लिख करके प्रैक्टिस करिए, अनदर 60% और याद हो जाएगा। इसके बाद आता है सेल्फ टेस्टिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अपना ही टेस्ट लीजिए, अनदर 10%। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप आते हैं, ब्रिंग योर डाउट्स, 10% आप मेरे साथ में फिर से गेन करेंगे, 100%। आप ओनली इतना सा काम कर रहे हैं और देन यू एक्सपेक्टिंग कि 100% ऑर्गेनिक आ जाएगी। पॉसिबल है या नहीं है? गेटिंग मी? सो जितना मैं आपको अभी काम करा रहा हूँ, इसको लिख करके प्रैक्टिस करके आना है, चाहे वो रिएक्शंस हैं, चाहे नोमेनक्लेचर है, चाहे मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक में। एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास, दिशा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आप लोग मुझे अपना रिटर्न का फोटो क्लिक करके PDF के फॉर्म पे भेजेंगे, जो आपने लिख करके प्रैक्टिस किया है। राइट? एम आई क्लियर? Yes, उस ग्रुप में मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, एक असाइनमेंट भेजूंगा, जो आपने करके भेजनी है। When you do the work, you will learn more. टाइम दे दीजिए सब्जेक्ट को, you will understand the subject very easily. Right? रिएक्शन भूल जाती है, एग्जाम में याद नहीं आ रही, इट्स ऑल लाइक आप कुछ कम काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओनली 20% का काम कर रहे हैं, रीडिंग। ठीक है, इससे तो पक्का है 20% याद रहता है। मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर रीड किया था, मुझे अभी 10% भी याद नहीं है। गॉट इट? न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, जितना मैंने सुबह रीडिंग किया था 10% भी याद नहीं है मेरे को। डू इट नाउ। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ, प्रेपरेशन नाउ। मेरे साथ साथ लिखेंगे अभी, राइट? राइट डाउन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, preparation of aldehyde by the oxidation of alcohols. ओके, यहां पर मैं एक टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कौन बताएगा? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड ऑक्सीडेशन? क्या मीनिंग होता है?
अंजलि, साक्षी, सानिका, Losing of electrons. रिपीट. Losing of electrons. गुड. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ये है मॉडर्न डेफिनेशन. क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? आपने जो बताया बहुत सही बताया हमें. मॉडर्न डेफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब मैं जानना चाह रहा हूं व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन? Addition of oxygen or electronegative element. ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. लिख लो यहां पर. ये जो टर्म आप ये याद हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो रिएक्शन को याद करना इजी हो जाएगा. ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल. आपने अल्कोहल चैप्टर पढ़ लिया, राइट? जिस कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है वो वाला कार्बन एटम डायरेक्टली एक और कार्बन एटम से बॉन्डेड है, सो इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल. ओके, ऑक्सीडेशन का मीनिंग मैंने बताया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ऐसा करने के लिए हमें यहां पर एक एजेंट ऐड करना पड़ेगा, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप पूरा लिखेंगे यहां पर, मैं OA लिख रहा हूं, पूरा लिखिए. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को करवाएगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम, और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन द एल्कलाइन मीडियम. अब आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली बताना है. KMnO4 देखा है प्रैक्टिकली? पोटेशियम परमैंगनेट देखा होगा. यस, देखा है नहीं देखा है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 किसने देखा है? सिद्धि, आपने देखा है? चलो दिखाते हैं आपको. आपने देखा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है कि उसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं. एक पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम ज़्यादा क्लेंजिंग करने के लिए, एंटीसेप्टिक मटेरियल लिक्विड बनाने के लिए उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और उससे हम काफ़ी चीज़ें साफ कर सकते हैं, जर्म फ्री कर सकते हैं. हैव यू सीन दैट लिक्विड पिंक कलर मटेरियल, पिंक कलर लिक्विड? नहीं देखा है? कहीं पर देखा हो? एनीवन? नहीं देखा है? चले फिर तो याद कर लेते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट, पिंक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या करवाएंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एक मैं यहां पर इसको ऐसे दिखा दूं, देखिए जरा. यहां से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा हूं और यहां से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा हूं. और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो ये H2O बना देगा और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देगा. सी हियर, आई हैव मेड एल्डिहाइड विद द लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल. यस और नो? क्या मिला हमें यहां पर? एल्डिहाइड. Am I clear? तन्मय, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन मूवमेंट समझ में आया? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हुआ था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, दे आर मेकिंग डबल बॉन्ड हियर, ये वाला, and we get an aldehyde. It means primary alcohol upon oxidation gives aldehyde. याद हो गया रिएक्शन? तो आपने करना क्या, याद करने का तरीका देखिए, आपको याद यहीं से ही हो जाएगा. ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट?
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक दो बार लिख के देखिए, याद हो जाएगा। मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, वो करते करते ही आपको याद हो जाएगा। सिंपल सा असाइनमेंट होगा, पर उसको करने से आपको याद हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर पाएंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, आपके बोर्ड लेवल भी और साथ में कंपटीशन लेवल भी। ग्रेजुअली यू विल ग्रो। देखा तो हमसे आईआईटी का भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, राइट? सो ऑर्गेनिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ फियर, ओनली यू फेस इट, यू विल डेवलप। चलिए, अब एक लास्ट रिएक्शन मैं आज के कराऊंगा, उसके बाद हम आज ऑफ करेंगे। लास्ट क्लास, लास्ट रिएक्शन ये है हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल। मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल क्यों कहते हैं इसे? कौन बताएगा? चैतन्य। जिस कार्बन के साथ में OH ग्रुप बॉन्डेड है, that is directly bonded with 2 more carbon atoms, so it is a secondary carbon atom, it's a secondary alcohol. And now I'm adding here oxidizing agent, remove hydrogen from here, remove hydrogen from here. Removal of hydrogen is called as oxidation. Oxidation. ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हुआ है, they are making double bond. अब आप मेरे को बताओ कि क्या बन गया यहाँ पर? सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बन रहा है? Secondary. It is making ketone. तो क्या याद रखेंगे? प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। Am I clear? एंड मेरा आज का एक क्वेश्चन, इसके बाद मैं क्लास ऑफ करेंगे। दिस इज and I'm treating with the acidified potassium dichromate. What is the product formed? K2Cr2O7. What is the product formed? Butone. Butane चैतन्य आपने ही बताया? परफेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने मुझे बताना है आज की क्लास में आपने कितना सीखा। 50% yes or no, or more than 50%? क्विक आंसर, चलो चैट बॉक्स में लिखो। 50%, 70%, 90%, 100%, कुछ भी जो आपको लगता है। You speak out or write in the chat box. I'm giving you all the options. Quick. अरे कितना परसेंट आपको समझ में आए? 85% तन्मय, ओके, गुड स्कोर। 70%, ओके, 70%. Siddhi says 70. एट्टी, ठीक है, 80, 85 होना चाहिए, ठीक है, बहुत जेन्युइनली बता रहे हो आप, दैट्स गुड। एशा से 80%, राइट, परफेक्ट। सो इतना ही आना चाहिए था, 80-85% ही आना चाहिए। 20% आपके प्रैक्टिस से आएगा, 20% आपके प्रैक्टिस से आएगा। चैतन्य से 90%, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो मैं आपको इस क्लास के बाद में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, मैं दिशा मैम को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे। यू डू इट एंड नेक्स्ट टाइम यू सेंड इट बिफोर द क्लास। हमारी क्लास होगी कल इवनिंग में 5 o'clock, तो बिफोर 3 o'clock इट शुड बी विद मी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई एम एंडिंग सेशन नाउ, सी यू टुमारो सेम टाइम एट 5 o'clock. Okay, yes Disha ma'am, should I end the session now? Okay, right students, I'm ending session now, see you tomorrow at the same time.